Hello students, welcome to Tech Edu classes. Previously we have discussed about the number system from class 6 and the integer number system from class 7. Today we are going to discuss about rational number from class 8. First of all, I would like to thanks to all my subscribers and all my viewers and all those who have commented for my videos. Thank you for that. Today the rational number, what is rational number? The number of the form a by b. That means any kind of number which can be expressed by a fraction a by b, where a is the numerator and b is the denominator. But there is some condition for the rational number where b must be not equals to 0. That means b can be a positive integer, b can be a negative integer, but b should not be 0. So in rational number there are two types of rational number. Number one is positive rational number. Positive rational number is the rational number where the numerator and denominator both carry the same sign. That means it may be positive for both or it may be negative for both. So for example, if we write 3 divided by 4, 3 by 4, it is a positive rational number. And also for minus 3 divided by minus 4. Here both the numerator and denominator carry the same sign, here for plus sign and here negative sign. Both are called positive rational number. The second one is negative rational number. Negative rational number is the kind of rational number where numerator and denominator both carry opposite sign. That means, for example, negative 3 by positive 4 or positive 3 by negative 4. That means numerator, here numerator carries the negative sign and denominator carries the positive sign. Here numerator carries the positive sign and denominator carries the negative sign. So these two are a type of negative rational number. What is equivalent rational number? We can multiply and divide both the numerator and the denominator with the same integer number to get the equivalent rational number. That means अगर numerator और denominator को दोनों को ही same integer number से multiply करे या फिर divide करे, तो करने के बाद जो rational number हम लोगों को मिलेगा तो उसको पहले रैशनल नंबर जो था उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोला जाएगा. हियर फॉर एग्जांपल 16 by 24. This is a rational number. 16 is divided by 8 and 24 is also divided by 8. We get 2 by 3. So 2 by 3 is the equivalent rational number of 16 by 24. So 2 by 3 16 by 24 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा. सिमिलरली सेम तरीके से if we multiply 16 by 24, both 16 numerator is multiplied by 3 and denominator is multiplied by 3. So from the numerator we get 48 and from the denominator we get 72. So 48 by 72 is the equivalent rational number of 16 by 24. So if we multiply the denominator and numerator both by the same integer number, here also 3 and here also 3, or we can divide both the numerator and denominator with the same integer number, it may be any kind of integer number, we will get the same equivalent rational number. So अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि क्वेश्चन में दिया है, जस्ट ए सेकेंड,
क्वेश्चन में दिया है कि 2/3 का ऐसा कोई 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/6। So 4/6 is the equivalent rational number of 2/3. Similarly, we can multiply 2/3 and also 3/3, so 6/9. So 6/9 is also an equivalent rational number of 2/3. So in this process, we can multiply by 2, 3, 4, 5, 15, 30, 50, whatever number we can multiply with this numerator or denominator. But remember, याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर? अ रैशनल नंबर in which the numerator and denominator do not have the same divisor. That means numerator और denominator का कोई सेम डिवाइजर नहीं होगा 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 72/108. So if we find out the factors of 72 का अगर फैक्टर्स हम लोग निकाले तो हो जाएगा 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3, and from 108 we can get 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 2s are 58, and 58 2s are 108. So here 2 is common, 2 is common, 3 is common, and 3 is also the common factors. So as per the definition of standard form of rational number, there should not be any common divisor of numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, बट यहाँ पे कॉमन डिवाइजर है, एक नहीं 4 कॉमन डिवाइजर है। तो अगर इन चारों को हटा दिया जाए, इन चारों को अगर हटा दिया जाए तो हम लोगों को मिलता है 2/3. Here from 2/3, 2 is the numerator and 3 is the denominator. यहां से हम लोगों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 1, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दीज रैशनल नंबर. 72/108 का रैशनल इक्विवेलेंट और स्टैंडर्ड दोनों ही रैशनल नंबर होगा 2/3. ये इक्विवेलेंट भी है और स्टैंडर्ड भी है. क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंट कैसे आया? अगर 72 को हम लोग 36 से डिवाइड करें और 108 को हम लोग 36 से डिवाइड करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 2/3. तो सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी हुआ. सो अब 36 कहां से आया? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So the common divisor from numerator or denominator is the फैक्टर 36. तो 36 से डिवाइड कर दिए 2/3. तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर किसी भी हम लोगों को ऐसा रैशनल नंबर दिया जाए तो हम लोग नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकल जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. मतलब दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, दो रैशनल नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे समझ में आएगा? बिना देख के, बिना कर के समझ में आएगा नहीं. देख के तो थोड़ा बहुत बोल देगा कि हाँ ये बड़ा छोटा, लेकिन वो गलत होने का चांसेस है. तो थोड़ा एक सही मेथड होना चाहिए. सपोज दो रैशनल नंबर दिया हुआ है 15/30 और एक रैशनल नंबर दिया है 9/7. देख के लगता है कि ये 15 है 30 है तो ये बड़ा हो जाएगा.
चलो करके देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। फर्स्ट द मल्टीप्लाई दिस नंबर फर्स्ट न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट रैशनल नंबर, पहला जो रैशनल नंबर दिया है उसी का न्यूमरेटर के साथ सेकेंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 वी गेट 105. Next, multiply the denominator of the first rational number and numerator of the second rational number. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 90, सो 270. तो दो रिजल्ट हम लोगों को मिला 105 एंड 270. We know that 105 is less than 270. So यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड रैशनल नंबर भी बड़ा होगा। तो देख के पता नहीं चलता है, ये बना के करके समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो यार दिस नंबर इज ग्रेटर, सो रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट रैशनल नंबर। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि किसको पहले मल्टीप्लाई करे किसको बाद में मल्टीप्लाई करे, कुछ नहीं समझ, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाना है। फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर, उसका न्यूमरेटर एंड सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर फर्स्ट। याद रखना है कि फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर को लेना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। ओके, ये तो गया दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन होगा। तो बट अगर दो की जगह पे ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा 3 या 4 हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, उसका नियम लेकिन थोड़ा ज्यादा है। सपोज 3 रैशनल नंबर दिया गया है, 7/10, 9/15 एंड 8/20। दो रैशनल नंबर देगा तो उसका कंपैरिजन इजी है, बट 3 देगा तो थोड़ा लेंदी है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट मींस 10, 15 और 20 का LCM निकालेंगे। तो 10, 15 एंड 20 का LCM निकालेंगे अगर, तो निकलेगा 60। आप लोग करके देख लीजिएगा, 60 आएगा। तो अगर 60 आया तो फर्स्ट जो नियम है, बिना कुछ सोचे जस्ट इन तीनों नंबर को हम लोग ऐसे लिख देंगे, बिना कुछ सोचे लिख देंगे। उसके बाद इक्वल लेके बड़ा सा लाइन खींच के फिर इक्वल लेके छोटा लाइन खींचेंगे, सब में बड़ा सा लाइन, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, बस कंप्लीट। नेक्स्ट ये सारे छोटा लाइन के नीचे जो LCM आया वो LCM को लिख देंगे, 60, 60, 60। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज हाउ 10 विल बी 60। 10 कैसे 60 बनेगा? 10 60 तभी बनेगा जब 10 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग थोड़ा देर पहले ही सीखे हैं कि इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होता है, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस 7 इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 6। सिमिलरली 15 गेट्स 60 by the multiplication of 4, so 9 is also multiplied by 4 and 20 is multiplied by 3 to get 60 and 8 also multiplied by 3. So from here 36, from here 42 and from here 24. Okay, now look at this number only. No need to look about the denominator, no need to look about these all numbers, only look at these three numbers, 42, 36 and 24. So here 24 is the least among these three numbers. That means 8/20 is the least rational number, and then 36 is the second least rational number, and then 42. So 7/10 is the greatest among these three rational number. इन तीनों rational number में से सबसे बड़ा जो है वो 7/10, क्योंकि यहाँ पे 42 आया है, सबसे बड़ा है 42। उसके बाद आया 9/15, किस लिए आया? क्योंकि ये 36 आया है, 36 जो है वो 24 से बड़ा होता है। और उसके सबसे छोटा जो है
20। तो लिखते समय हम लोगों को ये रैशनल नंबर लिखना है, बट समझते समय हम लोगों को जस्ट इन तीनों रैशनल नंबर को यूज करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। 3 या 3 से अधिक हम लोगों को अगर रैशनल नंबर कंपैरिजन करने के लिए देगा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, अगर 2 देगा तो हम लोग प्रीवियस मेथड से बनाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो बिना किसी कंफ्यूजन का हम लोग शुरू करते हैं। सपोज एक नंबर दिया हुआ है 5/7। फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप 1, वो हम लोगों को ढूंढना है ये नंबर लाइन में। सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इस साइड पे +1, +2, +3 और इस साइड पे -1, -2 एंड -3 एंड देयर ऑन, और भी चलता रहे। फर्स्ट जो स्टेप है, हम लोगों को देखना है कि ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये रैशनल नंबर इनमें से 2 लाइन में से कौन सा लाइन के अंदर वो रहेगा। हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर जब भी होता है, न्यूमरेटर जब भी छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो हम लोगों को समझ लेना पड़ता है कि वो 1 से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये इज लेस देन 1, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मीन्स वो 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव साइन होता तो 0 से छोटा होता, मतलब इस साइड पे होता, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है नहीं, दैट मीन्स वो 0 से बड़ा होगा, राइट साइड में होगा, पॉजिटिव एंड पे होगा। बट यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 से छोटा है, दैट मीन्स वो 0 एंड 1 के बीच में होगा। क्लियर? अब कैसे समझ में आएगा 0 एंड 1 के बीच में कहां होगा? फर्स्ट सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें हम लोगों को देखना है डिनोमिनेटर कितना है। कितना डिनोमिनेटर है यहाँ पे? 7। तो हम लोगों को पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में होगा। सो 0 और 1 के बीच में इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों को 7 लाइन खींच देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको छोड़ के इसको लेके, बार बार बोल रहे हो, इसको छोड़ के इसको लेके, तो यहाँ पे 7 इक्वी डिस्टेंस लाइन हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे 5 लेना है, तो 1 2 3 4 and 5. So this number is 5/7. Similarly, if we get a number 15/8, 15/8. So फर्स्ट स्टेप हम लोगों को देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है। या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मींस इसके जैसा नहीं होगा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम लोगों को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेना पड़ेगा। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 8 1 8 7, सो वी गेट 1 होल 7/8। ये हुआ इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 होल 7/8। अब देखिए, ये जो 1 होल 7/8 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब यह है कि 1 से बड़ा होगा, बट 2 से छोटा होगा। कैसे 2 से छोटा होगा? क्योंकि 7/8, 7 जो है वो न्यूमरेटर छोटा है, 8 डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो 1 तक, ये 1 प्लस इसके बीच में होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में होगा। अब जब इन दोनों के बीच में होगा, सेम प्रोसेस स्टेप 2, यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर इज 8, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन बाय 8 equidistant line, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, it's 7. Okay, and numerator is 7, so 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, so this number is 1 whole 7/8, that means 15/8. तो सिंपली हम लोगों को फर्स्ट जो स्टेप होगा वो स्टेप होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कौन बड़ा कौन छोटा ढूंढना है। अगर बाय चांस हम लोगों को न्यूमरेटर छोटा मिला
तो हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि वो 0 और 1 के बीच में है। अगर डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पे जो होल पे रहेगा वो वहां तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद फिर जितना भी बचा रहेगा फ्रैक्शन उसको सेम प्रोसेस से, इस प्रोसेस के जैसा डिवाइड कर देंगे। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना इक्वी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे हम लोग छोटा छोटा मार्क कर देंगे, और जितना न्यूमरेटर रहेगा काउंट करके वहां तक काउंट करेंगे। सेम प्रोसेस अगर नेगेटिव नंबर होगा तो भी हम लोग इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड पे हम लोग नेगेटिव काउंटिंग करेंगे। सपोज यहाँ पे है -5/7, तो नेगेटिव साइन, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन है तो हम लोगों को 0 के लेफ्ट साइड पे आना है। इसको 7 डिवाइड करेंगे, इक्वी डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो है ये 7th नंबर, तो 5 1 2 3 4 5, सो दिस इज -5/7। ओके, सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वीडियो में हम लोग देखे थे इंटीजर नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज, सिमिलरली रैशनल नंबर का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर देन द रिजल्ट विल बी अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। दैट मींस अगर a प्लस b और c प्लस d दो रैशनल नंबर है और e by f रिजल्ट है, तो e by f is also a rational number. For example, 3/2 is added to 7/8. We can add this number. 8 is the LCM of 2 and 8. First, we have to divide 8 by the denominator 2. We will get 4, and then multiply with the numerator. So we will get 12. Similarly here also 8, the 8 LCM is divided by the denominator, we will get 1, and 1 is multiplied by the numerator equals to 7. So 19/8. This is a rational number itself. That means दो रैशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे इंटीजर में हम लोग किए थे एडिशन के लिए। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज a प्लस बी इक्वल्स प्लस सी प्लस डी, अगर इसको हम लोग प्लेस चेंज कर दे, दैट मीन्स सी प्लस डी को पहले लिखे और a प्लस बी को बाद में लिखे, द रिजल्ट विल बी सेम। दैट मीन्स इफ वी चेंज द पोजीशन of these two rational number, the result is also be a rational number and the result will remain same. This law is known as commutative law for the addition of rational number. And the third law is associative law. बिल्कुल सिमिलर है इंटीजर नंबर पे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम थिंग, सपोज 3 rational number a by b, c by d plus e by f equals to a by b plus c by d plus e by f. That means if we add these two rational number first and the result is added to this rational number, we will get the same result if we add these two rational number first and the result is added to the rational number a by b. So for example 2/3 plus 1/3 plus 5/3. Here we will get 3/3, आप लोग बना के देख सकते हैं, 3/3 होगा प्लस 5/3, सो रिजल्ट होगा 8/3। सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे करें हम लोग 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3, पहले ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट होगा, तो 2/3 प्लस 6/3, सो 8/3। यहाँ पे भी हम लोग 8/3 मिला। दैट मीन्स इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द ब्रैकेट फ्रॉम हियर टू देयर, the result will remain the same. This is known as associative law. Similarly
additive identity. What is additive identity? In rational numbers addition, the additive identity is known as 0. 0 is called the additive identity. How? If we add 0 with a rational number, we will get the rational number itself. Or if we add any rational number, with 0, then also we will get the rational number in return. This is why 0 is known as the additive identity for the addition of rational number. The last property is known as the additive inverse. What is additive inverse? If we add a rational number with another rational number and we will get 0, then the second rational number is known as additive inverse of the first rational number. जैसे suppose एक नंबर है a by b is a rational number, and और एक नंबर है negative a by b minus a by b. That means a by b एक रैशनल नंबर, उसका ऑपोजिट साइन का और एक रैशनल नंबर. अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों को मिलेगा a प्लस ऑफ माइनस a बाई b. यहां से हम लोगों को मिलेगा a माइनस a बाई b. ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस प्लस मिल के मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है. सो 0 बाई b, अगर 0 किसी भी रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के ऊपर रहता है तो वो आंसर 0 होता है. तो यहाँ पे आंसर 0 हुआ. सिमिलरली अगर हम लोग a बाई b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में पढ़े हैं, तो भी हम लोगों को 0 ही मिलेगा. दैट मीन्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर is the rational number itself with an opposite sign. उल्टा साइन रहेगा. अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा. बट चेंजेस नहीं होगा, विदाउट साइन और कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा. तो ये एडिटिव इनवर्स है. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रैशनल नंबर बिल्कुल सेम जैसे एडिशन का प्रॉपर्टीज हुआ वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज होगा. कुछ चेंजेस होगा तो हम शुरू से बता रहे हैं. नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी सेम वहां पे था. इफ टू नंबर्स आर एडेड एंड द रिजल्ट विल बी द रैशनल नंबर. हियर ऑल्सो इफ टू रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड then the result will also be a rational number. That means if we multiply a by b and c by d, the multiplied result is also a rational number. Similarly अगर सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी में था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Commutative property is also same from as the addition. A by b multiplied by c by d is equals to the rational number after the interchange their places. And the third one is associative property. This is also same as the addition. Suppose a multiplied by e by f equals to a by b ब्रैकेट बस इंटरचेंज हुआ है, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो सब में सेम आएगा. अगर नेक्स्ट अगर हम लोग जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे जाए. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे जाए वहां पे क्या था एडिशन के समय पे एक ऐसा नंबर जो उस
नंबर उस रैशनल नंबर के साथ ऐड करने पे वही रैशनल नंबर वापस आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा कोई नंबर जो कोई रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो रैशनल नंबर वापस आएगा। दैट मीन्स a by b is multiplied by that number and we will get a by b in return. What will be the number? The number obviously is 1. So 1 is called the multiplicative identity of a rational number. And the next one is multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? If we, it is 5 number, if we multiply a rational number with another rational number and we will get 1. So what is the rational number? The rational number is the reciprocal of this rational number. That means ये rational number पे जो न्यूमरेटर है वो इसमें डिनोमिनेटर हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर जो है वो उसमें न्यूमरेटर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल, उल्टा, a by b is multiplied by b by a equals to 1. ऐसा एक रैशनल नंबर जो दूसरा रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो हियर b by a is the multiplicative inverse of a by b. Similarly, we can say that a by b is the multiplicative inverse of b by a. मतलब एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो द लास्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लॉ उसमें नहीं था, रैशनल नंबर के एडिशन में ये लॉ नहीं था, ये डिफरेंट है। हियर इफ वी मल्टीप्लाई a rational number with the addition or sum of two other rational number, that means a by b is multiplied by the sum of two rational numbers c by d and e by f. अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो the result will be the same if we multiply this rational number separately. That means a by b is multiplied with c by d and a by b is multiplied with e by f. A by b is multiplied with c by d and a by b is multiplied with e by f. But the result, two results should be added here. That is why it is called over addition. यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। अगर इन दोनों रिजल्ट को यहाँ ऐड कर देंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा और सिमिलरली ये रिजल्ट सेम होगा। एक एग्जांपल देख ले, 2 by 3 is multiplied 1 by 5 plus 2 by 10. तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 4 by 10। आप लोग बना के देख लीजिएगा, यहाँ पे मिलेगा 4 by 10 और यहाँ पे 2 by 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 by 30, 2 4 8, 3 10 30। सिमिलरली यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 2 1 2 and 5 3 15, 2 1 2 and 5 3 15 और यहाँ से मिलेगा 2 2 4 and 3 10 30। अगर इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों को 8 by 30 मिलेगा। सो द रिजल्ट इज same for both cases, in this cases and in this case also. This is known as the distributive law of multiplication for the rational number over addition. यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, याद रहे। सो आज का टॉपिक कंप्लीट होने से पहले एक बार रिमाइंड कर ले कैसे दो रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। सपोज दो रैशनल नंबर है 3 by 10 एंड 5 by 30। इन दोनों रैशनल नंबर को कैसे हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कर सकते हैं। सो पहले आते हैं एडिशन। एडिशन जब करना है सिंपली इसको हम लोग लिख दिए 3 by 10, 5 by 30। फर्स्ट जो काम होगा वो होगा 30 और 10 का एलसीएम निकालना। एलसीएम यहां पे निकलेगा 30, 10 और 30 का एलसीएम 30 निकलेगा। सेकंड जो काम है इस फ्रैक्शन के लिए, इस रैशनल नंबर के लिए 30 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, मिलेगा कितना 3। 30 को एलसीएम, ये 30 है, 30 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, मिलेगा 3। इन 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलेगा 9। यहां पे प्लस है तो प्लस साइन यहां पे आ गया और सेम प्रोसेस 30 is divided by 30 here, 30 is divided by 30 we will get 1
and multiply 1 with 5, so we'll get 5. So the result is 14 by 30. सिमिलरली अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे अगर सब्ट्रैक्शन दिया होता, तो दैट मींस यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होता तो बाकी सारा प्रोसेस सेम, बस यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो ये 14 नहीं बन जाएगा 4. सेम प्रोसेस 30, ये 30 LCM is divided by the denominator, get 3, and 3 is multiplied by this numerator 9. 30 is divided by 30, 1 is multiplied by 5. Same process. Okay, this is for addition and subtraction. And for the multiplication, simply write the number and find out the common divisor or common factor of this numerator and denominator. Here 3 and 30. 3 is the common factor. Why 3 is common factor? Because 30 equals to 3 into 10, or we can further divide 3 into 2 into 5, 30. So we can divide 3 by 3, we will get 1, and 30 is divided by 3, we will get 10. Similarly 5 or 10 or 5 or 10, both sides we can do. 5 and 2 are the common factor here, 5 and 2. That means we are dividing 5 with 5 and 10 with 5, because 5 is the common factor between 5 and 10. So ये 5 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, इसलिए डिवाइड कर दिए. यहाँ पे निकलेगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 2 जा 10. सो 5 and 1 and 2. सो अगर मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन के समय पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 1 is multiplied by 1 equals to 1 and 2 is multiplied by 10 equals to 20. So this is the result for multiplication. Similar case अगर डिवीजन हुआ, that means मान लीजिए 3 by 10 divide 5 by 30. तो फर्स्ट जो स्टेप है डिवीजन के लिए वो और कुछ नहीं, बस सेकेंड जो रैशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे. बदले में हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा. क्या टैक्स देंगे? ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा. सो 3 by 10 इसको उल्टा कर दिए, 30 by 5 बदले में टैक्स, ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लाई हो गया. सेम प्रोसेस अगर हम लोग कॉमन ढूंढने जाएंगे तो ये 30 और 10 में कॉमन निकलेगा. 10 कॉमन है तो 10 के साथ 10 डिवाइड कर दिए 1 और यहाँ पे 3. बाकी और तो कुछ कॉमन है नहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बिकॉज 3 5 और प्राइम नंबर. सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वी विल गेट 3 3 is 9 and 5 1 is 5. So this is the result for division. So any kind of confusion or any kind of problems, you can comment on the comment box, and please like my videos and also subscribe and share my videos so that I can give more and more videos. And this topic is very much important. Please concentrate on this topic. And आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट संडे से हम लोग जितना भी आप लोगों को कमेंट्स होगा, जितना भी प्रॉब्लम्स होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्लास रखेंगे संडे को. आप लोग जितना भी प्रॉब्लम्स होगा वो सारे हम लोग को कमेंट्स कर सकते हैं. जितना भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं या फिर उसके आउट जितना भी चैप्टर्स होगा उसको आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. हम लोग उसको डिस्कस करेंगे संडे को. ओके, तब तक थैंक यू वेरी मच.